भाई आईपीसी भी उठा ले बेटा, हम तुमको बहुत बढ़िया करियर रिलेशन दिखाएंगे। हाँ ये आईपीसी यही वाली उठा। और हमारी तू बुक्स नहीं लाया, सीआरपीसी की बुक्स ला भैया। जब तू पढ़ ही रहे हैं तो हमें तो उसकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तुम्हें तो दिक्कत जाएगी, हम कर ले आएंगे। उसमें मार्क है चीजें, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ सर, 2 बुक है हमारे पास। 152 पे आ गए हैं अपन। हाँ। हाँ आ जाओ, बहुत बढ़िया। B. Public nuisance. Section 152. Conditional order for removal of nuisance. Subsection 1. Whenever a district magistrate or a subdivisional magistrate or any other executive magistrate, especially empowered on his behalf by the state government, on receiving the report of a police officer or other information and on taking such evidence, if any, as he thinks fit, considered that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any public place or from any way, river, or channel which is or may be lawfully used by the public. B. That the conduct of any trade or occupation or the keeping of any goods or merchandise is injurious to the health or physical comfort of the community, and that in consequence such trade or occupation should be prohibited or regulated, or such goods or merchandise should be removed or keeping thereof regulated. C. That the construction of any building or the disposal of any substances likely to occasion conflagration or explosion should be prevented or stopped. D. That any building, tent, or structure or any tree is in such a condition that is likely to fall and thereby cause injury to person living or carrying on a business in the neighborhood or passing by, and that in consequence the removal, repair, or support of such building, tent, or structure, or removal of support of such tree is necessary. E. That any tank, well, or excavation adjacent to any such way or public place should be fenced in such a manner as to prevent danger arising to the public. F. That any dangerous animal should be destroyed, confined, or otherwise disposed of. Such magistrate may make a conditional order requiring the person causing such obstruction or nuisance or carrying on such trade or occupation or keeping any such goods or merchandise or owning, possessing or controlling such building, tent, structure, substance, tank, well or excavation or owning or possessing such animal or रुक tree. जा, देखो सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो डीएम है, एसडीएम है और ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे केसेस को सुनने के लिए, अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कोई पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है। पब्लिक न्यूसेंस कौन सी? ये 6 प्रकार के जो पब्लिक न्यूसेंस है वो दी है, 6 ग्राउंड है, देखो F तक दिए, नहीं समझे? 6 ग्राउंड दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ये लिखा है कि that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any public place or any way, river or channel which may be lawfully used by the public। ठीक है, कोई भी अगर जगह है, कोई रास्ता है, कोई पानी का भराव जहाँ पे जिसका उपयोग पब्लिक करती है, उसमें अगर तुम किसी प्रकार का न्यूसेंस कर रहे हो तो फिर आपको बकायदा वहाँ पे रिमूव किया जा सकता है वहाँ से, ठीक है ना? न्यूसेंस मतलब, न्यूसेंस मतलब तुमको बता रहे कि एक सीधा रास्ता, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। एक बार एक कलेक्टर, हरिद्वार के कहीं के कलेक्टर थे, हमें पता नहीं है, ठीक है, याद नहीं आ रहा एकदम से, उनका बड़ा रील वायरल हुआ था वीडियो। उसमें क्या हुआ था कि वो रास्ते में अपना एक, उन्होंने बैरिकेटिंग कर ली थी रास्ते में अपने एरिया के लिए, मतलब उनका घर लगा होगा, घर लगे से थोड़ा एरिया बढ़ा दिया, ठीक है, जो सब लोग करते हैं। तुमने देखा है कि राज्य सरकार की आधी से ज़्यादा जगह को ये लोग घेर लेते हैं। आपकी जगह 1000 स्क्वायर फीट है, तुमने क्या किया, 1 आध फुट 2 फुट बढ़ा के तुमने अपने, पता चली अपने ब्यूटिफिकेशन कर लिया है, तुमने अपने आसपास पेड़ लगा लिए, वो तुम्हारी जगह नहीं है ना भैया, और वहीं पे तुमने उसकी बैरिकेटिंग कर दी है। तो कलेक्टर वहाँ से निकले, उन्होंने बोला भैया ये किसका कैसा क्या है? तो उन्होंने बोला अरे ज़मीन है हमारी, फला ढिका दुनिया जमाना। तो उन्होंने बोला था कि अगर शाम तक नहीं हटी तो आप आओगे मेरे पास इसका कारण बताने के लिए, फिर याद रखना कि मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ आपको। तो बेसिकली वो धमका नहीं रहे थे, वो ये बता रहे थे कि अगर इसको आपने रिमूव नहीं किया तो आपको हमारे पास इस पब्लिक न्यूसेंस का नोटिस जाएगा और आपको कारण बताने कोर्ट आना पड़ेगा। कोर्ट किसकी होगी? यही कोर्ट होगी जो ये बोल के गए, ठीक है कि नहीं, कि तुम आओ और इसका जवाब दो, और अगर आप संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे पा रहे हो तो फिर उस न्यूसेंस को तुरंत के तुरंत हटाना पड़ेगा आपको, ठीक।
नहीं समझे, क्योंकि समझ में आ रहा है कि भाई पब्लिक वे है, तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन है, नहीं होना चाहिए। ठीक है। आया समझ में? यस सर। पहला कौन से किसके संबंध में अपना? पब्लिक प्लेस। पहला है पब्लिक प्लेस के संबंध में, रिवर, चैनल और इन सब के संबंध में, वे के संबंध में। ठीक है। बहुत, जैसे सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे तुमने कोई वो कर लिया है ना, कुछ कुछ इवेंट कराने लगे, न्यूसेंस है। क्यों करा रहे हो तुम, लोगों को दिक्कत जाएगी, है ना, वो तो इस पर्पस के लिए है नहीं। बहुत बढ़िया बात बता दे रहे तुम्हें, जैसे खेलने के ग्राउंड है, खेलने के ग्राउंड सरकार के हैं, पब्लिक प्लेसेस में आ गए। अब तुमने वहां पे अपने वो लगा लिए, शादी का टेंट, स्टॉल लगा लिए, ये लगा लिए, वो लगा लिए, बिल्कुल सही कह रहा है, ये पब्लिक न्यूसेंस है। ठीक। बी वाला सर, ट्रेड और ऑक्यूपेशन। एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और कीपिंग ऑफ एनी गुड और मर्केंडाइज इज इंजूरियस टू हेल्थ और फिजिकल कंफर्ट ऑफ द कम्युनिटी। आप कोई ऐसा सामान बेच रहे हो जो पब्लिक हेल्थ को ग्रीवियसली अफेक्ट कर सकता है या इंजूरियसली अफेक्ट कर सकता है, आप ऐसे माल को नहीं बेच सकते, आप ऐसे माल का उपयोग नहीं करा सकते, आप उसका लेन देन नहीं कर सकते। आपको मना कर दिया ना, मत करो आप। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कई गुड्स ऐसे होते हैं, प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए मना कर देती है कि भैया इनकी खरीद फरोख्त नहीं होगी, उसके बाद भी ये करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिकली इंजूरियस है, लेकिन तुम कर रहे हो जानबूझ के। आया समझ में? ठीक है। बहुत सारा सा एग्जांपल देने के लिए अगर हम तुमको बताएं कि वो एक जो गांव में गोली बिकती है, तुमने देखा होगा, वो गरी की गोली कहते हैं, कोकोनट चॉकलेट कहते हैं। अब एक तो ब्रांड की भी आती हैं, कई वो ऐसे ही लपेट के देते हैं, कई वो खुले डब्बे में डाल देते हैं। वो कैसी बन रही, क्या बन रही, उसमें शक्कर है कि उसमें दूध है, कुछ नहीं पता आपको। ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है किसी को परेशान कर दे। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ प्रोडक्ट्स ने एक ही पर्टिकुलर दुकान से या एक ही जगह से लिए गए हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के बाद कई बच्चे या कई जो लोग हैं वो अफेक्ट हुए। हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो गई हो। ऐसा कभी कभी तुमने देखा होगा कि जहाँ से एक जगह से बहुत सारा सामान गया है, पता चला सब वहाँ के लोग भर्ती हो गए। तो एकदम से वहाँ के सब बच्चे भर्ती कैसे हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग से? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन, कुछ ना कुछ मिलावट या कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ है जो कि बॉडी को कंज्यूम करने के लिए नहीं एक्सेप्टेंस दे रहा है। आया समझ में? उस कारण वो भर्ती होते हैं, फिर उनका इलाज पता चलता है कि यार ये गुड्स या ये प्रोडक्ट के चक्कर में नुकसान हो गया। तीसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस as is likely to occasion conflagration or explosion should be prevented or stopped। ठीक है। किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन जिससे संभाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए। आया समझ में? कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसे हो रहा है, कोई सब्सटेंस का डिस्पोजल ऐसे हो रहा है जिससे आपको पता है कि क्या हो सकती है, आग लगने की संभावनाएं हैं। ठीक है ना? तो आप उसको रोकेंगे या उसको प्रिवेंट करेंगे या उसको स्टॉप करेंगे। ठीक। लेकिन इसमें पटाखों का एग्जांपल ले तो पटाखे तो ऐसे रहते हैं कि आग लगने की संभावना है कभी भी। बिल्कुल है। तो उनको भी, उनके लिए भी एक व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है। सबसे बड़ी बात तुम ये समझ लो कि पटाखे ऐसे बिकते ही नहीं है। पटाखा बिना लाइसेंस के बिकेगा नहीं, और पटाखा बेचने के लिए भी आपको एक निर्धारित जगह पर होगी। वो निर्धारित जगह कभी भी बहुत ज़्यादा पब्लिक एरिया में नहीं होनी चाहिए। ये तुम उनके रूल्स में देख लोगे, क्योंकि क्या है, उससे आगजनी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है ना। इस कारण उनको इन सबसे दूर रखा जाता है। D, that any building, tent or structure or any tree condition that is likely to fall thereby cause injury to person living or carrying on a business in the neighborhood of passing by, that and consequences the removal, repair or support of such building, tent or structure, the removal, support of such trees necessary। ठीक है। तुमने देखा होगा कि कई पेड़ हैं। अब तुम देखो, ये याद रखना कि ये जो न्यूसेंस है, जरूरी नहीं है कि भाई पब्लिक न्यूसेंस मतलब चाहे कोई कर रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक न्यूसेंस हो सकता हो कि किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ही के थ्रू हो रहा हो, तो क्या वो पब्लिक न्यूसेंस नहीं रहेगा? भाई सरकार कोई चीज कर रही है और उससे जनता प्रभावित हो रही है, वो भी पब्लिक न्यूसेंस है। तुम ये मत सोचना कि कोई व्यक्ति ही करेगा तब पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा। ठीक है।
अब एक ऐसा पेड़, सपोज कोई एक कॉरपोरेशन है, सरकारी कॉरपोरेशन का ऑफिस, उसके सामने एक बहुत पुराना पेड़ लगा है, अब वो इतना बड़ा है कि दूसरी रोड तक कवर कर लेता है। अब वो पूरी उस मतलब ऐसा है कि दूसरे या तीसरे ही दिन गिरने की पूरी पूरी संभावना है, या थोड़ी बहुत भी हवा चलेगी तो वो गिर जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में अगर वो पब्लिक न्यूसेंस नहीं है तो क्या है? कल को उससे जनता प्रभावित हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो कायदे से किसको हटवा देना चाहिए? उनको हटवा देना चाहिए। और अगर वो नहीं हटा रहे तो बकायदा पब्लिक न्यूसेंस के लिए आप इनमें कंप्लेन कर सकते हो कि देखो आप ये कर रहे हैं, उनको नोटिस जाएगा कि तुम क्यों नहीं कर रहे इसको ठीक। आया समझ में? ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं होता। और तुमने देखा होगा कि नगर पालिका खुद से ही क्या करती है, ऐसे जो संभावित जो पेड़ है जिनसे नुकसान हो सकता है उनको कटवाती है। इनके पैसे वैसे जमा होते, सब बहुत व्यवस्था है इनके लिए। मतलब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो रही होती कि नहीं होगी, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर फंड है, सब कुछ है। अब करना नहीं करना उसमें खाऊ खोरी वो सब अपनी जगह है, उसको छोड़ दो तुम, वो अपने सब्जेक्ट से मैटर नहीं है फिलहाल। E. That any tank, well, or excavation adjacent to any such way or public place should be fenced in such a manner as to prevent danger arising to the public. आया समझ में? एनी टैंक, वेल, एक्सकेवेशन, ठीक है, टू एनी सच वे और पब्लिक प्लेस शुड बी फेंस्ड इन सच अ मैनर सो एज टू प्रिवेंट। भाई तुमने पता चला कुएं की फेंसिंग ही नहीं है, अब कोई आदमी, बच्चे दौड़ते आए सीधे घरने से कूद गए, गिर गए बेचारे, कूदे भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला कि आगे कुआं है। ठीक, लेकिन ऐसे कितने कांड आते हैं, कई है, नहीं करते तो लोग, आते ही हैं, नहीं करते, अरे हर दिन होते हैं, ठीक है, नहीं करते, ये इनकी जिम्मेदारी है। आया समझ में? कई गाड़ियां तो गड्ढे में ऐसे घुस जाती हैं कि तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि किसी प्रकार का कोई डाइवर्जन नोटिस नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्टॉपेज मार्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई अलर्ट डेंजर जारी नहीं किया गया है, अब वो घुसे जा रहे हैं। एक बार तो एक मतलब ये तो हम तुम्हें अपनी बात बता रहे हैं कि हम 3 जन जा रहे थे, एक रोड बन रही थी रायसेन साइड पे, तो उसका पुल चालू नहीं था, और हम लोग क्योंकि हाईवे में थे तो ठीक ठाक स्पीड थी, पुल पे कोई मार्क नहीं था तो हम पुल पे चढ़ गए। अब पुल पे बढ़िया स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, मतलब ठीक ठाक। अब एकदम से हमें देखा कि बिल्कुल अंधेरा सा हो गया, क्योंकि लाइट सीधी ऊपर जा रही थी हवा में, तो कुछ रोड वोड दिखी नहीं, तो हमने गाड़ी को रोका, हमने देखा कि रोड ही नहीं थी आगे। तो डेडली डेंजर है। तो हमारे जो मित्र लोग हैं वो कह रहे थे बताओ यार क्या ऐसी परिस्थितियां हैं, है ना, और वो खुद भी ऑफिसर्स थे जो साथ में थे, तो उनके साथ का ये वो है, लेकिन नहीं है, क्या करूँ। F. That any dangerous animal should be destroyed, confined, or otherwise disposed of. डेंजरस एनिमल में क्या हो रहेगा इसमें? डेंजरस एनिमल में कि अगर आप कोई ऐसा जानवर पाले हो जो जिससे किसी व्यक्ति को क्षति हो सकती है, आपके पोजेशन में कोई भी जानवर है, अगर उससे किसी को नुकसान हो सकता है, भाई जरूरी थोड़ी ना है कि हर जो डॉग है वो बिल्कुल काम हो, कई कुत्ते बहुत डेंजरस होते हैं, है ना, तो उनको संभालने की जिम्मेदारी उसके ओनर की है, नहीं समझे। अब एक चीज, दूसरी चीज, ऐसे कुत्ते भी होते हैं जो बेसिकली पब्लिक प्लेसेस पे स्ट्रे डॉग्स जिनको कह लो, जिनको कोई बीमारी लग गई है या जिनको कुछ परेशानी हो गई है, उससे काटने वाटने की संभावना और उससे बीमारियों की संभावना है, ऐसे कुत्तों को भी, है ना, हर प्रकार के, और किसी के पोजेशन में हो चाहे किसी के पोजेशन में ना हो, अगर वो पब्लिक न्यूसेंस इस कारण से हो रहा है कि उनके काटने से कोई बीमारी हो रही है, कोई प्रभावित हो रहा है, या वो किसी को परेशान कर रहे हैं, तो उनको हटाया जाए वहां से। ठीक है। सच मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट सर? ये जो 3 ऊपर दिए। अच्छा ठीक। देखो अब आ जाओ सीधे सच मजिस्ट्रेट से 1 2 3 4 पे आओ। वो रिमूव करने के लिए बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन को, ठीक है, ऐसा कोई बिजनेस जो आप कर रहे हो उसको रेगुलेट करने के लिए, हटाने के लिए, या मना कर सकते हैं कि भैया ये तुम करोगे ही नहीं। तीसरा, ऐसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को आप रुकवा सकते हो, या ऐसे जो वस्तु है उसको डिस्पोज करवा सकते हो, ठीक है ना। कोई फेंसिंग एंसिंग है जो गड़बड़ है, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, फोर्थ वाले पॉइंट की है, ठीक है, टू रिमूव और रिपेयर सच बिल्डिंग, ऐसी कोई बिल्डिंग है जो जर्जर स्थिति में है, टेंट स्ट्रक्चर है ना, ऐसी कोई ट्रीज है, इन सबको हटवा सकते हो, रिमूव करवा सकते हो, रिपेयर करा सकते हो। टू फेंच सच टैंक, वेल और एक्सकेवेशन, ऐसी टैंक की, वेल की फेंसिंग करा देना, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय, कन्फाइन और डिस्पोज सच डेंजरस एनिमल, है ना, कई बार ऐसे जानवरों को तुमने देखा होगा, मुर्गी उर्गी जब वो क्या फैल जाता है,
फ्लू, हाँ फ्लू। है ना, तब क्या करते हैं, तब यही तो करते हैं, सारी मुर्गियाँ जितनी हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वो सब एक्स वैक्स दुनिया जमाना होता है, कितनी बार होता है, क्योंकि आपको लोगों को, आम जनता को बचाना है ना, यही जिम्मेदारी भी तो आपकी है। ठीक है, आम जनता की लेकिन लाइफ एज कम्पेयर टू सभी जानवर से ऊपर रहेगी सरकार की जिम्मेदारी में। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो सरकार ये कभी नहीं चाह रही है कि आ, आम जनता जो है, आम जनता को बिल्कुल सर्वोपरि रखा जाए, ना कि जानवरों को। पर हाँ, यथा अगर प्रैक्टिकली देखें तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो तुम, लेकिन जानवरों की सुरक्षा की भी उतनी ही व्यवस्था कानून में की गई है सरकार के द्वारा, ठीक है, नियम कानून बना के जितनी की अपनी होती है, बस उनके उनके क्षेत्र को आप प्रभावित नहीं करते, आपके क्षेत्र को वो प्रभावित ना करें। जंगल का कोई जानवर जैसे शहर में आ जाता है तो तुम देखते हो कितनी अफरा तफरी होती है, क्योंकि दैट इज नॉट द प्लेस फॉर द एनिमल। इन द सेम वे अगर आप किसी जंगल में चले जाते हो तो वहां कितनी अफरा तफरी होती है, ये आप समझो। आया समझ में? कुछ जानवर भागेंगे, कुछ अटैक करने की कोशिश करेंगे, क्यों? उसका कारण है कि भाई वो जगह आपकी नहीं और उनकी जगह, मतलब उनकी जगह आपकी नहीं और आपकी जगह उनकी नहीं है। तो बैलेंस क्या है कि वो अपनी जगह पर रहेंगे, आप अपनी जगह पर रहोगे, इसलिए इतनी बाउंड्रीज हैं, बायो रिजर्व है, फॉरेस्ट एरिया को बता दिया कि भैया, तुमने देखा होगा कि गाड़ियों को चलना मना है, कई जगह पे गाड़ियों का अंदर घुसना ही मना कर दिया है, कई जगह केवल आप रोड पे चल सकते हो, जंगल के इधर उधर नहीं हो सकते हो। कई जगह जहाँ पे रोड है, जहाँ पे जानवर धोखे धड़ाके से सड़क पे आ सकते हैं, वहाँ पे भी आपने मार्क लगा के रखे कि भैया यहाँ पे ये जंगल वाला एरिया है जहाँ से आप गुजर रहे हो, और यहाँ पे संभावना है कि कोई जानवर क्रॉस कर जाए तो कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। है समझ में? तो ये बैलेंस है। तो ऐसा तुम, मतलब ऐसा कहना कि जानवर की जो वो है थोड़ा सा, मतलब नियम कानून के हिसाब से, हम ये नहीं कह रहे कि प्रैक्टिकली तुम्हें रोज ऐसी चीजें मिलेंगी, जैसे तुम्हें आदमी मिलेंगे जो क्या कह रहे हैं कि जानवरों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, कईयों के खिलाफ नहीं हो पाती, जो दिख जाती हैं, जो कॉग्निजेंस में आ जाती, जो नॉलेज में। हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज अगर आपके नॉलेज में आ गई तो फिर उस पर एक्शन लिया जा सकता है। अगर कोई चीज इतनी शांति से हो गई कि नॉलेज में नहीं आई तो फिर किस प्रकार का एक्शन लेंगे, बन बताओ। वो तो बहुत डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली, कि अगर ऐसी कोई चीज को ढूंढना है जो बिल्कुल समझ में ही नहीं आई, किसी को हवा ही नहीं लगी, है ना, जैसे टाइगर्स हैं, टाइगर्स में सब जगह उनको ट्रेस कर सकते हो आप, एक भी कम होता है पता चल जाता है, क्योंकि आप उनको, उनकी स्पीशीज को बचा रहे हो। लेकिन जो वो अधिकांशता में है, मतलब बहुत ज्यादा में है, वहां पे कहाँ पे कोई सीन है। आया समझ में? हंटिंग आज भी हो रही है, कितनी सारी चीजों की, कई चीजों को रोक पा रहे, कई चीजों को नहीं रोक पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है सरकार प्रयासरत नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। नियम कानून होना अपनी जगह है, उनका क्रियान्वयन होना अपनी जगह, ठीक है ना। ऐसे तो कितनी बार इंस्ट्रक्शन देती है पुलिस को, कितनी बार इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कितनी ट्रेनिंग होती है जिसमें ये बोला जाता है कि इतना व्यवहार कुशल रहना पड़ेगा आप लोगों के कि आम जनता आके आपको आपकी अपनी बात बता पाए, अपनी व्यथा बता पाए, वो आपके पास आती है, डर जाती है, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल कहाँ हो रहा जहां पे पुलिस आपकी मदद कर दे। हमारे मन में अपराध से ज्यादा पुलिस का भय है, क्यों? प्रैक्टिकली चीजें एग्जीक्यूशन में नहीं आ रही, जो थ्योरेटिकली बताई जा रही है, ट्रेनिंग में खूब बताया जा रहा है कि भाई कोई आए, कोई कंप्लेनेंट आए तो उसका ध्यान रखो। ऐसी चिल्लाएगी पुलिस कि तुमको लगेगा कि तुम ही अपराधी थे साले। हमारे दोस्त को क्या था ना, वो गया था कंप्लेंट करने, तो उसी से कह रहे तुम दारू पी होगी। लो क्या बोल रहे, अब क्या बोलोगे तुम? हमने बोला कि वो भय, वो पुलिस ही भय बना दिया, अब पुलिस ने भय बना दिया, ठीक है, तो आप क्या कर रहे, आप खत्म हो गए वहां पे, वो प्रभावी हो गए। अब उसमें जो सोशल ऑब्जेक्टिव था, जिसको नियम कानून का प्रवर्तन होना चाहिए, पुलिस
सौहार्द व्यवहार करेगी सबसे, और होम मिनिस्ट्री जारी कर रही है इंस्ट्रक्शन, एसपी बता रहा है, डीएसपी बता रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, पता चली जो कंप्लेनेंट आया उसको 2-4 तमाचे मार के भगा दिया। तो कहाँ रूल्स फॉलो हो रहे हैं? लेकिन अगर हमसे पढ़ाई के परस्पेक्टिव से पूछोगे तुम, तो हम बोल देंगे कि नहीं देखो ये गलत बोल रहे हो तुम, क्योंकि रूल्स नियम है, उनके खिलाफ एक्शन लिया कौन ले रहा है? जो आ गए नॉलेज में उनके पर एक्शन हो गया, जो शांति से खत्म हो गया उनका कोई एक्शन नहीं हुआ। एक पुलिस वाले ने वकील का हाथ मरोड़ दिया था अपने, वो क्या कहते हैं, थाने के अंदर, उस पर खूब वो हुआ, क्या हुआ पुलिस का? कुछ नहीं हुआ। यही का सागर का वकील था। अच्छा। सब जनता मिलके गई थी, ना वो वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, और वो केवल इतना पूछने गया था कि साहब इनके संबंध में कोई अपराध दर्ज हुआ है तो उसकी जानकारी चाहिए। तो तू नेता बन रहा है, तू फलाना बन रहा है, हाथ माथ मरोड़ दिया उसका, कह रहे आ अंदर। उनने बोला कि हाँ भाई नेता नहीं बनना, वकील, बताओ भाई क्या दिक्कत है। तो इसमें उग्र होने की कोई बात नहीं थी, लेकिन क्या करोगे, उसके खिलाफ एक्शन। हमेशा आपको सरकार क्या है, जो बड़ा ऑफिसर है वो आपको कुछ नहीं देगा तो कंपैशन जरूर दे देगा कि नहीं आप चिंता नहीं करो, इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा सालों तक, आप ऐसे ही घूमते रह जाओगे, और वैसे ही के वैसे ही कानून की मृत्यु वहीं की वहीं हो जाती है। आधे से ज्यादा कानूनों के क्रियान्वयन में निर्णय आते आते तक आदमी की मृत्यु, कानून की मृत्यु, उनके वारिसान की मृत्यु और न्याय की मृत्यु हो चुकी होती है। बसता क्या है, हाँ सजा मिल गई, इतना होता है और कुछ नहीं होता, ये समझो। ठीक है। Or if he objects so to do and appear before himself or some other executive magistrate subordinate to him at a time and a place to be fixed by the order, and so cause in the manner hereinafter provided by the order should not be made absolute. Subsection 2. No order duly made by a magistrate under this section shall be called in a caution in civil court. बहुत बढ़िया बात बोली है कि जो निर्णय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम और उनको देने के लिए जो अधिकारता दे दी गई है, क्या होगा कि वो बेचारा जा रहा है पब्लिक न्यूसेंस को बचाने के लिए, तुमने उस पर क्वेश्चन कर दिया तो अब वो आ गया कटघरे के अंदर, अब वो कोर्ट के अंदर गोल गोल घूम रहा है। तो बेसिकली जिस ऑब्जेक्टिव से हमने ये नियम बनाया था, ये कानून बनाया था कि पब्लिक न्यूसेंस को तुरंत हटाया जाएगा, वो खत्म ही हो गया। वाद विवाद की परिस्थिति को सिविल कोर्ट बाद में ठीक करेगी, पब्लिक न्यूसेंस फिलहाल सही होना चाहिए था, उसके लिए हमने ये आदेश दे दिया, अब इसको चैलेंज सिविल कोर्ट में नहीं कर सकते आप। आया समझ में? Explanation. A public place includes also property belonging to the state, camping grounds and ground left unoccupied for a sanitary or recreative purpose. हमने तुमसे बोला था ना, मेला वेला ग्राउंड दुनिया जमाना सब इंक्लूडेड है इसमें। Recreative purposes. हर एक मेला ग्राउंड हो गया, कोई रिक्रिएशनल पर्पस के लिए कोई ग्राउंड है जहाँ पे कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, ये सब ठीक है। Section 153. Service or notification of order. The order shall, if practicable, be served on the person against whom it is made in the manner herein provided for the service of summons. Subsection 2. If such order cannot be so served, it shall be notified by the proclamation published in such manner as the state government may by whose direct, and a copy thereof shall be stuck at such place or place as may be fittest for the conveying the information to such person. देखो ये बोल रहे हैं कि पहले तो हम सम्मन भेजेंगे, जहाँ सम्मन सर्व नहीं हो सकते वहाँ प्रोक्लेमेशन कर देंगे जैसे भी यथासंभव है, ठीक है, और उसकी जो कॉपी वहाँ आसपास चस्पा कर देंगे। वारंट वाला सीन कोई नहीं रहेगा इसमें, सब समान और प्रोक्लेमेशन। सेक्शन 152. पर्सन टू हुम ऑर्डर इज एड्रेस्ड टू और अ सो कॉज नोटिस। बहुत बढ़िया। इसमें ये बोला है कि भैया हमने तुम्हें आदेश दिया है कि उसको हटा दो, उसको रोक दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, तो या तुम तो उसका आदेश का पालन कर लो, और अगर तुम आदेश का पालन नहीं कर रहे तो तुम कोर्ट में आके उसका जवाब दो कि भैया क्या कारण है। बी, अपीयर इन अकॉर्डेंस विद सच ऑर्डर और शो कॉज अगेंस्ट द सेम एंड सच अपीयरेंस और हियरिंग मे बी परमिटेड थ्रू ऑडियो वीडियो। अगर तुम वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो तो तुम्हारे इंतजार नहीं करेगी पब्लिक न्यूसेंस को वो करने के लिए, ठीक है ना, खत्म करने के लिए। तुम ऑडियो विजुअल मीन से भी आ सकते हो, तो हम तुम्हें फ़ोन लगा के तुमसे वीडियो कॉलिंग करके दुनिया जमाना से हम तुमसे ले लेंगे, बातचीत कर लेंगे और अपना आगे बढ़ेंगे।
Section 155. Penalty for failure to comply with Section 154. A person against whom an order is made under 152 does not perform such act or appear and so cause, he shall be liable to the penalty specified in the behalf of Section 223 में जो आपको जो 223 सेक्शन है उसमें आपको बेसिकली पेनाल्टी आप पे लगा दी जाएगी, शायद 3 महीने 6 महीने कुछ है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है ना सर ये? थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है। 156 प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड, ये पढ़े? रुक जाओ। इसमें हम तुम्हें बता दे रहे हैं, पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं। पब्लिक राइट डिनाइड है, ये बोलना है कि हमने पब्लिक न्यूसेंस को आदेश दिए। भाई पब्लिक न्यूसेंस हमेशा क्या होगा, जहाँ पे पब्लिक का अधिकार होगा। अब एक आदमी आके कह रहा है कि यहाँ पे पब्लिक का अधिकार है ही नहीं है, ये हमारा पर्सनल राइट है यहाँ पे, तो तुम आके बताओगे ना भैया कोर्ट को। ठीक, नहीं समझे? इधर से क्षेत्र अधिकार खत्म हो जाएगा ये मजिस्ट्रेट ऑर्डर का। ठीक है। 157 procedure where person against whom order is made under section 152 appears to show cause. If the person against whom an order made under 152 is made appear to show cause against the order, the magistrate shall take evidence in the matter as in summon case. If the magistrate certifies that the order either originally made or subject to such modification as he considered necessary as reasonable and proper, the order shall be made absolute without modification, or the case may be with such modification. Subsection 3. If the magistrate is not satisfied, no further proceeding shall be taken in the case, provided that the proceeding under this section shall be completed as soon as possible within a period of 90 days and which may be extended for the reasons to be recorded 90 to 120 days. कहाँ लिखा है? नया जोड़ा है प्रोवाइडेड में। टाइम लिमिट कहाँ पे? 157 का प्रोवाइडेड। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन। ये सेक्शन नहीं है, ये डेज इम्पोर्टेंट है। सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे बोले किसी व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति के खिलाफ आदेश हुआ, वही तो अब वो अपीयर होगा या शो कॉज अपीयर होगा या उसका जवाब देगा। ठीक है ना? तो अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, जो उनने आदेश दिया था वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन उन प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट कितने दिन में करना है? 90 दिन में, और मैक्सिमम 120 दिन में। ठीक है ना? अब आ जाओ 158 पे। 158 प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मजिस्ट्रेट लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है किस सेक्शन में? 158 में। लोकल इन्वेस्टिगेशन कैसी? लोकल, देखो इन्वेस्टिगेशन की पावर मजिस्ट्रेट के पास होती नहीं है, ये सेक्शन है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल रही है। नहीं सर, लेकिन अपन तो वो वाले मजिस्ट्रेट देख रहे हैं ना। बिल्कुल, इसीलिए हम तुम्हें बोल रहे हैं। अभी ऐसा मिलेगा उल्टा उल्टा, लोकल इंस्पेक्शन मिलेगा, वो तुम्हें पड़ेगा कि कोर्ट कर सकती है, तो इंक्वायरी मिलेगी, वो पुलिस कर सकती है, ऐसा भी कुछ मिलेगा तुम्हें आगे चल के। ये तो अपन इनकी बात कर रहे हैं ऊपर। अभी तो मुझे हाँ ऊपर वालों की तो डायरेक्ट कर सकती है लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है ना? अगर उनको सही लगता है, और एक्सपर्ट को भी बुला सकती है। लोकल इन्वेस्टिगेशन 160 पे आओ सीधे 160। Procedure on order being made absolute and consequences disobedient. When an order has been made absolute under section 155 or section 157. जब वो एब्सोल्यूट हो गया, तुम कोई कारण नहीं बता पाए या तुम्हारा कारण था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तो ऑर्डर एब्सोल्यूट हो गया। अब जब ऑर्डर एब्सोल्यूट हो गया तो भैया तुमको जो आदेश दिया था उसको परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है ना? है ना? और नहीं तो 223 की कार्रवाई होगी। ठीक है। In case of disobedience, If such act is not performed within the time fixed, मजिस्ट्रेट उसको परफॉर्म करवा लेगा, और उसको परफॉर्म करवाने में जो भी खर्चा वर्चा आया है वो तुमसे ले लेगा। ठीक है ना? Such other property is without such jurisdiction, the order shall authorize the attachment and sale when endorsed to the magistrate. अगर आपके jurisdiction की वो प्रॉपर्टी नहीं है तो उस jurisdiction के मजिस्ट्रेट को भेज देगा और उससे वो चीज़ करवा लेगा। ठीक है ना? जो मजिस्ट्रेट ये काम कर रहा है उसके खिलाफ कोई सूट नहीं लगाया जाएगा। गुड फेथ है। यस। 161 162 रुक जाओ। देखो 161 में ये बोल रहा है कि हम अगर वही पब्लिक न्यूसेंस या उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन वो मैटर इतना अर्जेंट है कि उस पर सैंक्शन लगाने की या उस पर स्टे लगाने की या उस पर कोई डायरेक्शन देने की बहुत ज़रूरत है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे वो दे सकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना?
आया समझ में 161 में। और 162 में देखो डीएम, एसडीएम, ईएम और डीसीपी। डीएम, एसडीएम, ईएम और डीसीपी की अथॉरिटी याद कर लो, ठीक है ना। वो पब्लिक न्यूसेंस को दोबारा ना हो इसके लिए आदेश दे सकते, ठीक है ना। 163 अपन कल से पढ़ेंगे। ठीक है।